Hello dear students, very good morning to all of you. This is Joginder Rohila, Assistant Professor, Department of Chemistry, HD College, Ambala Kent. In this lecture, I am going to discuss with you about inorganic chemistry of BSc Final 5th semester. And in this lecture, we will discuss about crystal field splitting in tetrahedral complexes. Crystal field splitting in tetrahedral complexes is a topic of chapter Metal Ligand Bonding in Transition Metal Complexes. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री क्या होगी, सेंट्रल मेटल आयंस में जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स कैसे होंगी, ओरिएंटेशन क्या है, और जो d ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कैसे इफेक्ट करेंगे, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम कैसे समझ सकते हैं. दिस इज ए क्यूब. With the help of the cube, we will try to understand the structure of tetrahedral geometry. Metal is present in the center of the cube, and there are four ligands. Four ligands are present at the corners of the tetrahedron in such a way that at upper face, two ligands are opposite to each other. At lower face, two ligands are opposite to each other. And what is the bond angle in case of tetrahedral geometry? You know the bond angle of tetrahedral structure. Bond angle is 109 degree 28 minute. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेन चीज क्या है कि 4 लिगेंड्स अटैच हैं मेटल के साथ. अब कोई भी लिगेंड मेटल को प्रिंसिपल एक्सिस पर अप्रोच नहीं करता. देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर दैट इज Z axis, and ligands are present on these corners. So in order to understand the splitting of tetrahedral geometry, we need to explain the structure of d orbitals. कि d orbitals की शेप कैसे है, क्योंकि जैसे ligands मेटल को अप्रोच करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है लिगेंड्स का वो नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स d orbitals में प्रेजेंट हैं उनका नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, सिस्टम की एनर्जी रेज करेगी. जो डीजेनरेसी है दैट विल बी स्प्लिटेड, वो डीजेनरेसी डिस्टर्ब होगी. तो डी ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं जैसे कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर. वी नो दैट देयर आर 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, एंड आउट ऑफ these 5 orbitals, dxy orbital, if we consider this horizontal line as x-axis and this vertical line as y-axis, the shape of the dxy orbital is such type that the electron density is in between the x and y-axis. x और y-axis के बीच में electron density है. In case of dyz, if we consider z, this horizontal line as the z-axis, and y-axis, this vertical line as y-axis, the electron density is again not present on principal axis. Electron density is present in between y and z-axis. And in case of dxz, if this horizontal line is x-axis and z-axis is the vertical line, the electron density is present in between the x and z-axis. Again, the electron density is not present on the principal axis. So out of 5d orbitals, these 3 orbitals are having electron density in between the principal axis. dx square minus y square, if this is x-axis on horizontal line, this y-axis on vertical line, and electron density is present on principal axis x and y. So in case of dx square minus y square orbital, the electron density is present on the principal axis. And in case of dz square orbital, if we consider horizontal line x-axis and vertical line as z-axis and y-axis towards the observer, then mainly electron density lie on z-axis, and electron density also present on x and y plane in a circular way. So these are the shapes of various d orbitals. Remember, out of these 5 orbitals, इन 5 orbitals में से 3 orbital ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है.
दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रिंसिपल एक्सिस में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन 5 ऑर्बिटल्स की शेप्स के बेस पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं? डी ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स हैं और लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करता है। जैसे लिगेंड मेटल को अप्रोच करेंगे, कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर अप्रोच करेगा। अब हमने ये देखना है कि इन 5 में से जो ऑर्बिटल जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, उनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है। What is the angle of interaction between the orbitals which are having electron density on the principal axis? Suppose if the electron density is on principal axis like this, x-axis, y-axis and z-axis, what should be the angle of interaction between the ligands and these orbitals? We know that the bond angle is 109 degree 28 minute. Bond angle in case of tetrahedral geometry 109 degree 28 minute, and these orbitals whose electron density is on principal axis, these orbitals are at an angle of 109 degree 28 minute upon 2. These are present exactly exactly in between these two ligands. So you can say that this angle is around 54.7 degree. Angle of interaction between the orbitals whose electron density is on principal axis and the ligands. इन 5 में से ये जो दो ऑर्बिटल हैं dx² - y² and dz², जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इनके बीच में और लिगेंड्स जो अप्रोच करते हैं उनके बीच में 54.7 डिग्री का एंगल है। कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। अब आप देखिए, इन 5 में से वो 3 ऑर्बिटल जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में लाई करती है, उन ऑर्बिटल्स के बीच में और लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल है? दैट एंगल इज अराउंड 35 डिग्री। अब आप देखिए कि कुछ ऑर्बिटल्स लिगेंड्स को अप्रोच करते हैं 54.7 डिग्री एंगल पर, कुछ ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं लिगेंड्स को, इंटरेक्शन शो करते हैं 35 डिग्री में। किस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है? इन दिस केस इन विच angle is 35 degree. So out of these 5 orbitals, these 3 orbitals dxy, dyz and dxz, these 3 orbitals show greater interaction. These show greater interaction. Greater is the interaction, greater will be the repulsion. Greater will be the repulsion, greater will be the raise in energy of the those orbitals. कि इन 5 में से 3 orbitals की एनर्जी ज्यादा रेज करेगी। दूसरे 2 ऑर्बिटल जो लिगेंड्स को इंटरेक्ट करते हैं 54.7 डिग्री पे, इसका मतलब है ये एंगल 35 के कंपैरिजन में एक वाइड एंगल है। एंगल ऑफ इंटरेक्शन विल बी लेस। इफ एंगल ऑफ इंटरेक्शन विल बी लेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन विल बी लेस। सो फॉर दीज orbitals whose electron density is present on principal axis and they interact with the ligands at an angle of 54.7 degree, they will be lowered in energy. कि उन केसेस में इंटरेक्शन कम है, रिपल्सन कम है, तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं जिन्हें हम dx² - y² कहेंगे, dz² कहेंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर आपने क्या दिखाया है, dx² - y² एंड dz²। दीज 2 ऑर्बिटल्स आर एट लोअर एनर्जी। दीज 2 ऑर्बिटल्स are the part of E energy level, E energy state, and these 3 orbitals dxy, dyz and dxz, these are T2 energy levels. In case of tetrahedral geometry, G alphabet is not there. ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने G यूज किया था, T2G and EG। इस केस में हम T2 कहेंगे T2G की जगह पर, और EG की जगह पर हम बोलेंगे E. G is used in those cases in which the molecule or the complex is having center of symmetry, center of gravity is there. But in case of tetrahedral geometry there is no center of symmetry.
जिस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, डबली डीजेनरेट के लिए हम E यूज करेंगे और ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट के लिए हम T2 यूज करेंगे। तो टेट्राहेड्रल के केस में हम G का यूज नहीं करेंगे। दिस इज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग and this gap is called crystal field splitting gap. This is assigned the value of 1 delta T. 1 delta T is the energy difference between these two energy levels, and these three orbitals are raised in energy equal to the extent to which these two orbitals are lowered in energy. इन 5 में से 3 ऑर्बिटल उतने ही हायर एनर्जी लेवल पर हैं जितने कि 2 लोअर एनर्जी लेवल पर हैं। If we consider that average energy of the d orbitals remains same according to center of gravity rule, if average energy remains the same, then raise in the energy will be equal to this lower in the energy. Or you can say these two orbitals are stabilized by the same factor to which these 3 orbitals are destabilized. कि इस केस में स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? 0.6 डेल्टा टी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ई सेट ऑफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है 0.6 डेल्टा टी, बिकॉज दीज टू ऑर्बिटल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 3/5, 0.6 डेल्टा टी। और उनके लिए डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या है? 0.4 डेल्टा टी, बिकॉज दीज आर डिस्टेबलाइज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2/5, दैट इज 0.4 डेल्टा टी। और स्टेबलाइजेशन के लिए हम माइनस सिंबल यूज करेंगे और डिस्टेबलाइजेशन के लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे। तो जब भी स्टेबलाइजेशन फैक्टर की हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल में, जब भी ई सेट में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए जो फैक्टर होगा वो -0.6 डेल्टा टी होगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2 में प्रेजेंट होगा तो डिस्टेबलाइजेशन जो फैक्टर होगा वो +0.4 डेल्टा टी होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, डेल्टा टी, दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप इज नॉट इक्वल टू 10 dq, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में किया था कि 1 डेल्टा O इज इक्वल टू 10 dq। इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, 1 डेल्टा O इज इक्वल टू 10 dq, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में कम होगा, एंड दैट फैक्टर विल बी 4/9 ऑफ octahedral geometry, 4/9 of octahedral geometry. We know that the delta t value is 4/9 of delta O. कि डेल्टा O के कंपैरिजन में 4/9 क्यों है? Because in case of tetrahedral geometry there are 4 ligands, and in case of octahedral geometry there are 6 ligands. So in case of tetrahedral 4 ligands are there, and in case of octahedral 6 ligands are there, and this factor comes out to be 2/3. This factor is 2/3. And again, in case of octahedral complexes there is direct interaction. Some of the interactions are face-to-face interactions, but in case of tetrahedral geometry no interaction is face-to-face interaction, no interaction is direct interaction. चाहे आप T2G सेट T2 की बात करें या E सेट की बात करें, 5 ऑर्बिटल्स किसी भी वे में लिगेंड्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं, किसी न किसी पार्टिकुलर एंगल पे वो इंटरेक्शन शो करते हैं। तो वो फैक्टर भी आप कंसीडर करते हैं 2/3। सो 2/3 मल्टीप्लाइड 2/3, the overall factor comes out to be 4/9. So delta T is equal to 4/9 of delta O. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जस्टिफाई दिस पैरामीटर डेल्टा T is equal to 4/9 of डेल्टा O. डेल्टा O का डेल्टा T जो है डेल्टा O के 4/9 है, और यदि आपने इसको DQ की टर्म्स में यूज करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4/9 and what is 1 delta O? 1 delta O is 10 dq, and this comes out to be 4.45 dq. तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप है इसे आप या तो 1 डेल्टा टी कहेंगे या इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप को 4.45 dq कहेंगे। यदि आपने dq की टर्म्स में इसे कैलकुलेट करना है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का गैप 4.45 dq कंसीडर करना है। यदि डेल्टा t की टर्म्स में आपने कैलकुलेट करना है, समझना है, तो आप इसे करेंगे 1 डेल्टा t क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और याद रखेंगे कि इस केस में स्टेबलाइजेशन जो फैक्टर है वो -0.6 डेल्टा t है, और डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर जो है +0.4 डेल्टा t है। तो ये हमने समझा कि
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। What is CFSC? CFSC is amount of stabilization provided when d orbitals are split into two energy levels. In case of tetrahedral complexes, we know that stabilization factor is minus 0.6 delta t and destabilization factor is plus 0.4 delta t. If an electron is present in each set of orbitals, that will be stabilized by this factor minus 0.6 delta t, and if an electron is present in T2 set of orbitals, that will be destabilized by the factor of plus 0.4 delta t. Suppose if D1 electronic arrangement is there, if one electron is present in D subcell, what should be the electronic arrangement? Electron will be present here in E set of orbitals. What will be the value of CFSC? In that case, 1 multiplied minus 0.6 delta t. It is minus 0.6 delta t. Remember, if you want to calculate the CFSC in terms of dq, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSC कैलकुलेट कीजिए, लेकिन dq के टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है कि इस केस में डेल्टा टी एग्जैक्टली 10 dq के इक्वल नहीं है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने क्या किया था, यदि 0.6 है तो आपने कहा 6 dq, अगर 0.4 है तो आपने कहा 4 dq, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो गैप है dq के टर्म्स में वो 4.45 है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए डेल्टा टी के टर्म्स में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.45 से, तभी आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे dq के टर्म्स में। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आपने ऐसे करना है। मान लीजिए D2 का केस है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या करेंगे आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, CFSC की क्या वैल्यू होगी, 2 मल्टीप्लाइड माइनस 0.6 डेल्टा टी। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस 1.2 डेल्टा टी। यदि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इफ D3 इज देयर, D3 सिस्टम इज देयर, देन व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। देखिए, अगर D3 का केस है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रहे या हायर एनर्जी लेवल में रहे, जैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने कहा था कि जब हमारे पास चॉइस है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में लाई करे या हायर एनर्जी लेवल में जाए, तो उस केस में हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की और वीक फील्ड लिगेंड की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है हमने इस बात का कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी जो है बहुत ही कम है, दैट इज 4.45 dq। सो इस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, डेल्टा जो टी की वैल्यू है, डेल्टा टी इज नॉट हायर देन pairing energy, that is always lesser than the pairing energy. Delta T is lesser. It means electron always prefers to go to higher energy level. चाहे weak field ligands attach हैं या strong field ligands attach हैं, तो आपने केस को weak field के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना है। तो आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो D3, D4, D5 जो भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग उसको अपर एनर्जी लेवल में लेकर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग CFSC को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, D3 का अगर आपके पास केस है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा हायर एनर्जी लेवल में। तो D3 के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। CFSC आप कैलकुलेट करेंगे D3 के लिए, CFSC 2 मल्टीप्लाइड माइनस 0.6 डेल्टा टी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है 1 मल्टीप्लाइड प्लस 0.4 डेल्टा टी। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर देंगे इसे
2 multiplied minus 0.6 minus 1.2 delta t plus 0.4 delta t. The value comes out to be minus 0.8 delta t. This is the case for D3. If case of D4 is there, D में अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, you will say electron will be here. So these 2 electrons, the value of stabilization 2 multiplied minus 0.6 delta t, and for these 2 electron present in higher energy level 2 multiplied plus 0.4 delta t. What will be the value of CFSC? That is minus 1.2 delta t plus 0.8 delta t. This value comes out to be minus 0.4 delta t. यदि आपने DQ की टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.45 DQ के साथ। तो इस टाइप से आप CFSC को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं D5 के लिए? D5 1 electron, 2 electron, 3rd electron, 4th electron and 5th electron. Arrangement will be like this. D5 CFSC will be CFSC for 2 electron 2 multiplied minus 0.6 delta t, and for these 3 electrons 3 multiplied plus 0.4 delta t. This value comes out to be minus 1.2 delta t plus 1.2 delta t, and CFSC value will be 0. So in case of tetrahedral complexes for D5 CFSC will be 0. आपने ध्यान रखना है कि स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या है और डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या है। इसी तरह से हम हायर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के लिए भी CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं। D6 देखिए, D6 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं D6, इट मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। सो CFSC विल बी 3 इलेक्ट्रॉन multiplied minus 0.6 delta t, and for 3 electron 3 multiplied plus 0.4 delta t. आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर CFSC कैलकुलेट कीजिए। दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी minus 1.8 delta t plus 1.2 delta t. This value comes out to be minus 0.6 delta t. इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। D6 इफ D7 इज देयर, मान लीजिए D7 का केस है, D7 के केस में भी आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। D7 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा? 7th इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी लेवल, एंड इन दिस केस CFSC comes out to be 4 multiplied minus 0.6 delta t plus 3 multiplied plus 0.4 delta t. CFSC comes out to be minus 2.4 delta t plus 1.2 delta t. This value comes out to be minus 1.2 delta t. This is for D7. In case of D8, can you calculate? D8 electronic arrangement will be like this, and in this case I am writing here D8. So this is D8 for these 4 electrons, 4 multiplied minus 0.6 delta t. For those 4 electrons 4 multiplied plus 0.4 delta t, and CFSC comes out to be minus 2.4 delta t plus 1.6 delta t. This value comes out to be minus 0.8 delta t. D8. In case of D9, CFSC will be, electrons will be present like this. 4 electrons are present in E set of orbitals and 5 electrons are present in T2 set of orbitals. We can easily calculate this case also.
For these 4 electrons we can write like this, and for those 5 electrons, 5 multiplied plus 0.4 delta T. This value comes out to be minus 2.4 delta T plus 2.0 delta T, and this value comes out to be minus 0.4 delta T. And in case of D10, what should be the value of CFSC? The electronic arrangement is like this. It means all set of orbitals are completely filled. Can we calculate it? Yes, we can calculate it. For these 4 electrons, 4 multiplied minus 0.6 delta T. For those 6 electrons which are present in T2 set of orbitals, 6 electrons, 6 multiplied plus 0.4 delta T, value of CFSC comes out to be minus 2.4 delta T and plus 2.4 delta T. This CFSC comes out to be 0. So dear students, by considering the value of stabilization factor and destabilization factor in mind, we can easily calculate the CFSC for tetrahedral complexes. कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSC को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इस केस में कोई भी केस लो स्पिन का नहीं होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हैं या वीक फील्ड लिगेंड अटैच हैं. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप है, डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगी. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. अब टाइम है आपका प्रैक्टिस टेस्ट के लिए. आपने कुछ एक क्वेश्चंस बताने हैं, प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 1. What is the magnitude of crystal field splitting in tetrahedral complexes in terms of DQ? आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो मैग्नीट्यूड है DQ की टर्म्स में बताना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा. क्या वो वैल्यू होगी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, डेल्टा टी में नहीं बताना है, DQ की टर्म्स में आपने बताना है. सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट के लिए. सेकंड क्वेश्चन, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको आपने ड्रा करके दिखाना है. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस टेस्ट इज, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई टेट्राहेड्रल complexes are always high spin complexes. कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं, आपने रीजंस बताने हैं, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि टेट्राहेड्रल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. उन केसेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को. कैलकुलेट
number of unpaired electrons in D7 tetrahedral geometry and in FeCl4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। D7 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में और FeCl4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आपने टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। 5th क्वेश्चन है कैलकुलेट CFSE for NiCl4 2 negative complex and for COCl4 2 negative complex। आपने CFSE कैलकुलेट करनी है इन 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी, कौन से स्टेबलाइजेशन फैक्टर हैं, कौन से डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर हैं, और डी ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं उनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या रोल है, और CFSE को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस जो हैं हाई स्पिन क्यों होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने के बाद भी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें डेल्टा टी की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होती है, और डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और कुछ एक क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, आप प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कीजिए, लर्न करते रहिए, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच।